Okay, it's 9:46 now, so I guess we'll start. Good morning to all of y'all. Now, in today's lecture, let us quickly see uh, what we are going to see in today's lecture. First of all, we'll quickly recall what we did in the previous lecture. Then we will address the doubts and queries that you have posted regarding the previous lecture. Then we'll see today Laplace transform of standard function. Next, linearity property of Laplace transform. Then I'll give you all practice problems and then I'll tell you what we are going to do in the next lecture, the topic for next lecture, and we are going to take our online quiz 3. So this is what we have planned for today. Okay. So to begin with, first of all, a quick recall of previous lecture. In the previous lecture, we had seen problems, that is type 1 problem, where we saw how to find Laplace transform using definition. Okay, so this is what we had seen in the previous lecture. Okay, now next, coming to the doubts and queries that has been posted in the previous lecture. So the common doubt, only one doubt has been raised, and that is uh, how to solve question number 2 in the from the practice problems. So some people have said they didn't understand how to use substitute the function, or the integration is difficult. Okay. So based on your queries, I'm giving you the following hints using which you will be able to solve. Okay. So let us read this question. Find the Laplace transform of f of t, where f of t equal to t minus a the whole cube for t greater than a and equal to 0 for t less than a. Okay, so now over here, the first thing I would like to tell you all is that whenever in a problem, any such constant is given a. Now here in this question, we are not mentioned whether a is positive or negative. Okay, so when nothing is mentioned, we have to always assume a. By default, we assume a to be positive. That is the first thing we have to do. Okay, you have to assume a to be positive. all, all right, next, before proceeding with the solution, let us have a visual representation of this function. So here we consider the interval minus infinity to infinity, and in between we have the point 0. Okay, and let us see how this function is defined. So f of t is defined as t minus a the whole cube for t greater than a. So that means there has to be some point a. As I told you, if nothing is specifically mentioned, by default we take a as positive, so I have taken a on the positive side. Okay, now so here is our point a. For t greater than a, our function defined is t minus a the whole cube. So t greater than a means over the interval a to infinity. So over the interval a to infinity, our function defined is t minus a the whole cube. And it is defined as 0 for t less than a. Now when we say t less than a, it means the interval, it refers to the interval minus infinity to a. Okay, so this function is defined as 0 for all values of t less than a. So it would be this part as well as this part. No need to give it in two separate things, but then I have just mentioned it over here so that it is clear that it is 0 in this part also of the interval also, and the function is defined as 0 over this part of the interval also. Okay, so this is how our function looks like. Now we are going to find the Laplace transform using definition. So when we write the definition of Laplace transform, it is integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. Now here we have to substitute f of t. Now if you see in this integral, that is for Laplace transform, in this integral, we are interested only in that part of the function which is defined over the interval 0 to infinity. So here, though the function is defined from minus infinity to infinity,
for finding Laplace transform, we need only this part of the interval from 0 to infinity. Okay, so we will just focus on this part. Here, whatever the function is, now right now here it is 0. Suppose it is sine t or e raised to minus t, whatever the function here is defined, we are not interested in that, because for Laplace transform definition, we don't need that part of the function. Okay, so just focus on the part of the function over the interval 0 to infinity. So we have to substitute f of t. But from 0 to infinity, the function has two expressions, two different expressions. One from 0 to a, it is 0, and the other one from a to infinity, it is t minus a the whole cube. So we'll have to separate the integral into two parts. One would be integral 0 to a, we substitute f of t as 0, and the other one from a to infinity, we substitute f of t as t minus a the whole cube. Okay, so this is how we substitute f of t. Now the next part is performing the integration. Now if you look at the first integral, e raised to minus st into 0. So this entire thing becomes 0. Integral of 0 would be 0. So here this value would be 0. So that only leaves you with this integral. Now when you have to evaluate this integral, if you look at the integrand function, you have one exponential function here multiplied with one algebraic function. So this is two different types of functions multiplied together and you have to integrate. So you have to use our UV rule, integration by parts, which is also called as. Okay, so we use our UV rule. So to use our UV rule, we need to choose our U and V. By which rule? Lie rule. Okay, so here we have an exponential function, algebraic function. According to Lie rule, algebraic function comes first and then comes the exponential function. So that means our function u will be t minus a the whole cube and our function v would be e raised to minus st. Okay, so this is how we choose our u and v. Now in the next step, you can rearrange the terms, write u first, v next, and then carry on with the procedure of integration. Okay. So now here, the next doubt is this t minus a the whole cube. Hello? Yeah, any queries? Any queries here? Let me check. Ma'am, Okay. that 0 to a I didn't get. 0 to a, what we substituted here. Yes. Okay. Please do not unmute. Stay 0. with me. Now see, how is our function defined? The function is defined over two part of the interval, बराबर? t greater than a. t greater than a का क्या मतलब है? A, all the points to the right side of a, correct? Yes. Right side of a मतलब a से लेके infinity तक. a से लेके infinity तक function defined is t minus a the whole cube. Is Yes. that right? Okay. Now next is t less than a. Now when we say t less than a, it means all the points to the left of a. बराबर? Yes. Yes. तो लेफ्ट ऑफ ए का मतलब है माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक. Yes, ma'am. माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक द फंक्शन इज डिफाइंड एज 0. मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक आप कहीं पर भी जाओ, फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0 है. 0. Yes. तो माइनस इंफिनिटी टू 0 के ऊपर भी 0 है, 0 Yes. टू ए वाले पार्ट में भी वो 0 है, बिकॉज दिस पार्ट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए. Yes, ma'am. तो ये टी लेस देन ए वाले पार्ट में आ जाता है. Understood. अंडरस्टूड? Yes. ओके. तो ये वाला डेफिनेशन वाला पार्ट भी समझ में आ गया? Yes. हाँ. तो अभी ये डेफिनेशन वाले पार्ट में हमने u चूज किया है t माइनस ए द होल क्यूब, करेक्ट नो? और अपना v है e रेस टू माइनस एस टी. एंड अगर आपने u इंटू वी रूल यूज किया इंटीग्रेशन का, u ऑलवेज गेट्स डिफ्रेंशिएटेड. तो इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है, राइट? t माइनस ए द होल क्यूब का डेरिवेटिव है 3 इंटू टी माइनस ए द होल स्क्वायर.
Okay, so इसका derivative is this u gets differentiated when you simplify this integral. तो इसका डेरिवेटिव इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेरी दैट वाज आस्क्ड कि ये इसको इंटरवल को कैसे समझे और उसको एफ ऑफ टी में सब्सटीट्यूट कैसे करें. सो आई होप दिस पार्ट ऑफ द डाउट इज क्लियर. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट जो है, समवन हैज आस्क्ड मी हाउ टू इंटीग्रेट टी माइनस ए द होल क्यूब. उसके लिए माय फर्स्ट थिंग इज, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको t माइनस ए द होल क्यूब को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज t माइनस ए द होल क्यूब इज फंक्शन u, e रेस टू माइनस एस टी इज फंक्शन v. और अगर आपने uv फॉर्मूला में देखा तो u गेट्स डिफरेंशिएटेड, v गेट्स इंटीग्रेटेड. तो t माइनस ए द होल क्यूब को इस सॉल्यूशन में कहीं भी आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, बट देन इन जनरल सिंस द डाउट इज आस्क्ड, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू, इसका सॉल्यूशन में ये यूज नहीं होगा, बट सिंस द डाउट इज आस्क्ड, आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस डाउट. ओके, इंटीग्रल ऑफ t माइनस ए द होल रेस टू n dt, जनरल फॉर्मूला दे रही हूँ, is equal to t minus a the whole raised to n plus 1 upon n plus 1. तो ये हमारा इंटीग्रल का फॉर्मूला है. बट देन एज आई रिपीट अगेन, ये फॉर्मूला इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सॉल्यूशन में कहीं भी यूज नहीं होगा. दिस इज जस्ट अ जनरल फॉर्मूला आई एम गिविंग बिकॉज दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ओके, हैव आई आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज विथ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? इसमें और कोई क्वेरी है? यस और नो बोल सकते. नो मैम. ओके ओके, तो शैल वी प्रोसीड अहेड विथ टुडे. अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम जो है, या बिफोर प्रोसीडिंग टू टुडेस लेक्चर, ये टी माइनस ए द होल क्यूब देख के हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं. अगर ये टी क्यूब होता, स्वीट लिटिल फंक्शन, नाइस लिटिल फंक्शन, तो इतना हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते. बट ये टी माइनस ए द होल क्यूब को देख के इसको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं. डोंट गेट डिस्टर्ब. हमने जो प्रोसीजर समझ के लिया है प्रीवियस, इसमें सेम प्रोसीजर यूज करो एंड ट्राई सॉल्विंग इट. ओके, फाइनल आंसर इज ऑल्सो गिवन फॉर चेकिंग, क्रॉस वेरिफिकेशन. और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ओके, बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आस्क मी द डाउट अगेन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई. ओके, ठीक है. नाउ कमिंग टू today's lecture. Now, today's lecture we begin with a simple, interesting conversation between online teacher and students. Okay. Okay. The online teacher says, so now we can find Laplace transform of any given function using definition. Okay. तो अभी हमने definition use करके किसी भी function का Laplace transform कैसे find out करना है, वो हमने देख लिया है. Okay. तो student का doubt है, but the definition method is so lengthy. True, isn't it? डेफिनेशन मेथड आप हर एक प्रॉब्लम के लिए यूज करने जाएंगे. अभी तक तो आपने अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया है, यू वुड हैव सीन इवन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ टी, दोज वर वेरी सिंपल फंक्शन. तो इवन फॉर दोज सिंपल फंक्शन यू हैव सीन दैट द सॉल्यूशन मेथड इज सो लेंदी. ओके, तो अगर थोड़ा और फंक्शन, हमारा जो क्वेश्चन में जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो फंक्शन अगर थोड़ा बड़ा फंक्शन आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत लेंदी हो जाएगा. ओके, तो डेफिनेशन मेथड इज नाइस, बट इसका एक प्रॉब्लम है, इट इज वेरी लेंदी. अभी दूसरे में स्टूडेंट का प्रॉब्लम देखो. यस, एंड इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रल एंड दैट कुड बी कॉम्प्लिकेटेड. यस, सो इंटीग्रेशन, ये जो डेफिनेशन मेथड है, इसमें आपको डेफिनेशन यूज करना है, एफ ऑफ टी सब्सटीट्यूट करना है, और उसके बाद उसमें जो इंटीग्रल है वो सॉल्व करना है. ओके, तो इंटीग्रल सॉल्व करना, ये sometimes the integral is easy, but sometimes the integral solving can become a little bit complicated. So naturally we want to know, is there any other easy way of finding Laplace transform of any given function? कोई भी फंक्शन दिया है तो उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. ये चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं.
लेकिन ये डेफिनेशन मेथड के अलावा डू वी हैव एनी अदर मेथड फॉर फाइंडिंग Laplace transform? So of course the given answer is yes, and that is what we are going to see in the remaining part of this topic कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का आसान तरीका क्या है. ओके, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी से एनी गिवन फंक्शन, तो लेट हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एनी गिवन फंक्शन लुक्स लाइक. तो जब हम बोलते हैं हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, तो वो फंक्शन दिखता कैसे है. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ अ फंक्शन लुक्स लाइक, जिसका आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. तो ये फंक्शन अगर आप देखेंगे ये फंक्शन बना कैसे है. इफ यू सी, यू हैव दिस कांस्टेंट 3, देन ये t है sin t, t क्यूब 2 e रेज टू माइनस 2t sin t. तो दिस फंक्शन को बनाया कैसे है, ये सब जो स्टैंडर्ड, ये सब हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है. दिस t इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, sin t is a standard function, t cube is a standard function, करेक्ट. e रेज टू माइनस 2t स्टैंडर्ड फंक्शंस है. तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस है उन फंक्शंस को लिया है, और हमारे जो ऑपरेटर्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन ऑपरेटर्स, इस एग्जांपल में डिवीजन नहीं है, बट देन वी कैन यूज दिस ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन to these standard functions, and we can construct a new function. So that is how any function is constructed. Okay, यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है. So when we say we have to find Laplace transform of any given function, that given function is constructed by using the standard functions using the operations. Okay, so if we want to find the Laplace transform of any given function, we need to know two things. The first thing is how to find the Laplace transform of standard functions. Okay, and second thing, ये जब operators आ जाते हैं उसमें addition, subtraction, multiplication, division and all, then in Laplace transform, then how to deal with that. Okay, तो ये दो चीजें सीखनी है. स्टैंडर्ड फंक्शंस है तो उनका लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा रहेगा, और इन स्टैंडर्ड फंक्शंस में अगर ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, इफ दी स्टैंडर्ड फंक्शंस आर कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस, देन इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या फर्क पड़ता है. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू नो. ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, standard function. So when we say standard function, which are the types of standard functions we are having? Of course, the first type of standard function default is algebraic function, t raised to some power. Okay, तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है, इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब ट्रिग्नोमेट्रिक में वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑल्सो. ये हमने सेमेस्टर 1 में देखा था. ओके, तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक में से हम लोग सिर्फ दो फंक्शन कंसिडर करेंगे, साइन टी एंड कॉस टी. ओके, इसके अलावा और चार फंक्शन है. विच आर दोस फोर फंक्शंस? टैन टी, सेक टी, कोसेक टी, कॉट टी. उन फंक्शंस को लप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे. ओके, because they are not single valued functions, so that you can check it out. Similarly, यहाँ पर hyperbolic function में we will consider only these two functions as standard functions, sin hyperbolic t and cos hyperbolic t. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें ये चार फंक्शन का लप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए. दिस वाज द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, like sin inverse, cos inverse, but these functions are again not single valued function. If you remember, existence के लिए we needed single valued function, तो इनका ये हम इसमें स्टैंडर्ड फंक्शन में इनका फॉर्मूला नहीं आता है. नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन we can come across is e raised to at and e raised to minus at. ओके, तो इन फंक्शंस का लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, अगेन ये हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन का जो लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है. सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रॉब्लम
it is not involved in standard functions. Okay, तो जब हम standard functions बोलते हैं, so we need to standard functions में कौन से functions included है? t raised to n sin t cos t sin hyperbolic t cos hyperbolic t e raised to at e raised to minus at. तो Laplace transform के लिए these functions will be considered as the standard functions और हमें इनका Laplace transform पता होना चाहिए. Okay, so that is the first thing. Next thing क्या है? As I said, operators come into the pictures. तो ये जब ऑपरेटर्स आते हैं, सी आई told you about plus minus division and multiplication. There could be more operations, advanced operations like derivative and integration also. तो ये ऑपरेटर्स जब हमारे फंक्शन में अपीयर होते हैं, ये ऑपरेटर्स जब हमारे फंक्शन में दिखते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, that is given by the properties of Laplace transform. Okay, तो कौन से ऑपरेटर के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, कैसे वो प्रॉपर्टी यूज करना है, ये हमें आना चाहिए. Okay, so these are the two things that we should be well equipped with. ये अपना tool set है to find out the Laplace transform of any given function. Okay, so I repeat again. So we know the definition method for finding Laplace transform, okay, of any function जिसका Laplace transform exist होता है. But definition method में क्या problem है? It is very lengthy, solution बहुत lengthy है, उसमें integration solve करना पड़ता है, तो वो integration बहुत complicated हो सकता है, तो it is not very convenient. तो इसके लिए हमें एक alternative method चाहिए to find Laplace transform of any given function which is easier. So when we say any given function, so any given function is made up of standard functions connected by operators. Okay, so if you want to find Laplace transform of any given function, उसके लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, इनका Laplace transform क्या है, ये हमें पता होना चाहिए. और दूसरी बात, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस को जब ये ऑपरेटर से कनेक्ट किया जाता है, तो उसका Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे होता है. तो वन डाउट, हाँ, तो दिस इज द सेकेंड थिंग. ओके, भरत हैज आस्क्ड वेयर इट इज अप्लाइड इन रियल लाइफ, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड वेयर इट इज यूज्ड. ओके, रियल में Laplace ट्रांसफॉर्म का बहुत सारा एप्लीकेशंस है. I have saved that application वाला part for the end. Okay, but now since you have asked, मैं सिर्फ उसका दो लाइन में बताती हूँ. Laplace ट्रांसफॉर्म का मेन एप्लीकेशन है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो जहां जहां डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वहां वहां उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए Laplace ट्रांसफॉर्म जो है, ये एक मेथड है. ओके, इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैड शोन यू वन एग्जांपल सर्किट एनालिसिस का. एक सर्किट है आपके पास एंड यू वांट टू नो व्हाट वुड बी द करंट फ्लोइंग. सर्किट में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है. सो you want to know what would be the current flowing through that circuit at any point of time. तो उसके लिए उस सर्किट को गवर्न करने वाला आपको इक्वेशन चाहिए, करेक्ट. तो दैट इक्वेशन विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन. बीडब्ल्यू में आपने देखा है, सर्किट दिया है तो उसका इक्वेशन आप जब लिखते हो, तो दैट इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको अगर करंट आई का फॉर्मूला चाहिए, तो you'll have to solve that differential equation, correct. तो वो differential equation solve करने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods हैं. उसमें से एक method है Laplace transform. तो जो Laplace transform वाला method है, वो बहुत easy method है compared to many other methods, because वो general method है. आपका जो भी type of differential equation रहेगा, ये Laplace transform use करके उसको आसानी से solve कर सकते हैं. Okay, तो this is one example I could give you in circuit analysis. इसके as I said there are many examples. So इसका जो application वाला part है, I will discuss at the end of this topic. Okay, तो उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से डिटेल में एंड में डिस्कस करेंगे. ओके, फाइन. तो एज आई सेड, राइट नाउ हम क्या ध्यान दे रहे हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया है तो उसका Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है इन अ वेरी इजी वे. आई होप
what I have explained to you here is clear to all of you all? अभी मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी गिवन फंक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है, ओके, तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज विच डील्स विद द ऑपरेटर्स. ओके, फाइन. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन. ओके, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये जो पिछले इसमें एक स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने नहीं लिखा है एंड दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन 1. दैट इज बिकॉज उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी फाइंड आउट किया था. ओके, सो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 वी हैड सीन इज 1 बाय s, तो वो भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन के लिस्ट में आएगा. ओके, but now let us see how to find out the Laplace transform of the standard functions. तो पहले हम शुरू करते हैं अपना सबसे फेवरेट सिंपल फंक्शन दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन से. तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर आपको e रेज टू at फाइंड आउट करना है, ओके, तो एज ऑफ नाउ आपके पास सिर्फ डेफिनेशन मेथड पता है और कोई मेथड आपको पता नहीं है. So we'll find out the Laplace transform of e raised to at using the definition method. Okay, now this is very simple. Let us see this. तो सबसे पहले हम लोग definition लिखेंगे Laplace transform का. Laplace transform of f of t is integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. ठीक है, अब इसमें f of t substitute करेंगे. So that is integral 0 to infinity e raised to minus st एफ ऑफ टी के जगह पे सब्सटीट्यूट किया ई रेज टू ए टी डी टी. अब ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं. सो अगर आपने कंबाइन किया तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी प्लस ए टी. ओके, दिस बिकम्स माइनस एस टी प्लस ए टी. तो अब उसमें से हमने माइनस और टी को कॉमन लिया है, तो वी गेट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to minus of s minus a t. Okay, now this is integral of exponential function, so let's integrate this. This would be e raised to minus of s minus a t upon t के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस ऑफ s माइनस a, तो वो हमने डिवाइड कर दिया. दिस इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ओके, नाउ लेट अस इवेल्युएट इट. तो ये इवेल्युएशन में सबसे पहले हम t के जगह पे इंफिनिटी डालेंगे, तो वी गेट e रेज टू माइनस s माइनस a इंटू इंफिनिटी अपॉन माइनस ऑफ s माइनस a, देन माइनस we put t equal to 0, so we get e raised to minus s minus a into 0 upon minus s minus a. Okay, I have written this step little elaborately because there is one point which we have to consider. अभी ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर s माइनस ए इंटू इंफिनिटी, ओके, दिस वी विल से इज इंफिनिटी, करेक्ट. इस पे दिस ये जो है इसका हमें थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं. व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग दिस एक्सपोनेंशियल वैल्यू, सी दीज आर द एक्सपोनेंशियल वैल्यूज वी हैव. ई रेज टू माइनस इंफिनिटी है तो उसका वैल्यू 0 है, ई रेज टू इंफिनिटी है तो उसका वैल्यू इंफिनिटी है, करेक्ट. तो यहाँ पर ये जो ई रेज टू माइनस एस माइनस ए इंटू इंफिनिटी है, तो ये जो पावर है अगर ये माइनस इंफिनिटी बनता है तो हमारा इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन अगर ये पावर इंफिनिटी बनता है तो इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब द एंटायर आंसर विल बिकम इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड. ओके, डजंट एग्जिस्ट. सो वी हैव टू टेक केयर कि ये जो पावर है ये जो है ये माइनस इंफिनिटी है. ओके, तो ये माइनस इंफिनिटी सॉरी, ये पावर माइनस इंफिनिटी तब रहेगा अगर ये जो s माइनस a है वो पॉजिटिव है, करेक्ट, बिकॉज माइनस इंटू अ पॉजिटिव वैल्यू विल बी माइनस इंफिनिटी. अगर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंफिनिटी बन जाएगा. ओके, सो दिस विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन दिस s माइनस a का वैल्यू इज पॉजिटिव. s माइनस a का वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगा, जब s का वैल्यू बड़ा होगा और a का वैल्यू छोटा होगा, करेक्ट. ओनली देन s माइनस a विल बी पॉजिटिव. सो दिस विल बी पॉजिटिव when s is bigger than a, s is greater than a.
So this Laplace transform of e raised to at exists for s greater than a. Okay, so let us assume that s is greater than a. तो ये बन गया e raised to minus infinity, which is 0. So we can substitute the value. Now this becomes e raised to minus s minus a into 0 is e raised to 0, which is 1. So that gives us minus 1 upon minus s minus a. Now this 0 upon minus s minus a, this entire thing becomes 0, and minus of minus is plus, so we get the answer as 1 upon s minus a. तो इसमें से हमें हमारा ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला मिलता है, Laplace transform of e raised to at is equal to 1 upon s minus a. ये कैसे मिला, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. ये एज अ प्रॉब्लम भी आपको पूछेंगे, तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट by using definition. But now we have to remember this as a formula. दूसरे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए हर बार जहां पे आपको Laplace transform of e raised to at लगेगा, हर बार आपको ये डिराइव नहीं करना है. ओके, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. तो Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Okay, suppose if I want to find out what is Laplace transform of e raised to minus at, तो क्या होगा, यहाँ पर a के जगह पे अगर हमने माइनस डाला, तो यहाँ पर भी a के जगह पे माइनस आ जाएगा. So Laplace transform of e raised to minus at will become 1 upon s plus a. Okay, so that is the next formula we have to remember. So Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Laplace transform of e raised to minus at is 1 upon s plus a. तो अब हमें ये दो फॉर्मूला याद हो गया, राइट? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ Laplace transform. Okay, now this linearity property of Laplace transform tells us how Laplace transform behaves when the operation addition, subtraction and scalar multiplication is involved. Okay, when the operation addition is there, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी भी फंक्शन के साथ एक स्केलर यानी एक कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई किया है, तो Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे बिहेव करता है उस ऑपरेशन के साथ, एंड सब्ट्रैक्शन. तो दिस प्रॉपर्टी सेज इफ a and b are constants, then Laplace transform of a into f of t. Okay, when a function is multiplied with constant in Laplace transform, you can simply take that constant outside. देखो यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, सो दिस इज सेम एज a into Laplace transform of f of t. Okay, so this is linearity property. कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ इन Laplace transform, you can take that constant outside the Laplace transform. Okay, next Laplace transform of f of t plus g of t. तो अगर दो फंक्शन को ऐड किया है, एडिशन के साथ कनेक्ट किया है, तो Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे बिहेव करता है? इट इज Laplace transform of the first function plus Laplace transform of the simple second function. Okay, so this is how Laplace transform behaves. So Laplace transform of f of t plus g of t is Laplace transform of f of t plus Laplace transform of g of t. Now these two statements combined together, okay, will give us the linearity property. तो यहाँ पर मैंने linearity property बताते वक्त नेगेटिव subtraction की भी बात की थी. तो let us see how Laplace transform behaves with subtraction. So Laplace transform of f of t minus g of t, it is Laplace transform of f of t minus Laplace transform of g of t. Okay, इसको कंबाइन करके एक स्टेटमेंट में बोलना है, तो इसका जो जनरल स्टेटमेंट है लीनियरिटी प्रॉपर्टी का, it is Laplace transform of a times f of t plus b times g of t is equal to a times Laplace transform of f of t plus b times Laplace transform of g of t. Okay, so in very simple terms अगर बोलना है, तो Laplace ट्रांसफॉर्म में फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, और अगर कहीं पे प्लस या माइनस आता है, तो Laplace ट्रांसफॉर्म बिहेव्स जस्ट लाइक ओपनिंग द ब्रैकेट. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t plus Laplace transform of g of t, Laplace transform of f of t minus Laplace transform of g of t. Okay, let us just quickly see some functions का example.
सपोज यू हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 into sin t, तो ये कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है. लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी सेम एज 2 into लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t. ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे. अब यहाँ पर सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी देख रहे हैं. सपोज इफ यू हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t प्लस e raised to t, टू फंक्शंस कनेक्टेड बाय एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी बोलता है दिस विल बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t. ओके, नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t प्लस t क्यूब माइनस 2 sin t, तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम 3 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब माइनस 2 times Laplace transform of sin t. Okay, this is linearity property. Just one more example. Laplace transform of t minus 5. So this will be Laplace transform of t minus 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा 1. So this will be 5 into Laplace transform of 1. Okay, so this is our linearity property. I hope linearity property is clear to all of you. ओके, ठीक है. तो अभी हमने एक टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, एंड दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to minus at. करेक्ट. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at is 1 upon s minus a. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to minus at is 1 upon s plus a. नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे. सो देर आर टू formulas involved here. Laplace transform of sin at क्या होगा, Laplace transform of cos at क्या होगा. ओके, तो इनका Laplace transform हम डेफिनेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, लेट अस सी. सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. Laplace transform of f of t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. ओके, सपोज वी आर फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, तो इसमें f of t के जगह पे sin t डालेंगे. सो दिस वुड बी इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st sin at dt. अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट कैसे करेंगे? वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, इंटीग्रल ऑफ e raised to at sin bt dt. ओके, एंड देन सब्स्टिट्यूट द लिमिट. करेक्ट. सो दिस इज वन मेथड. नाउ दिस मेथड आई एम लीविंग इट अप टू यू ऑल टू ट्राई. ओके, हियर बिकॉज ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ये वाला मेथड से अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at फाइंड आउट करना है, cos at फाइंड आउट करना है, तो ये आप ट्राई कीजिए. हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस एक ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at एंड cos at. ओके, नाउ व्हाट इज दैट? यहाँ पर हम ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे. रिमेंबर ऑयलर्स फॉर्मूला सेमेस्टर 1 में देखा था. विच चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट. ऑयलर्स फॉर्मूला क्या बोलता है? e raised to i theta equal to cos theta plus i sin theta. करेक्ट. तो यहाँ पर e raised to i at लिया हमने, थीटा के जगह पे अपना एंगल यहाँ पर 80 है, तो थीटा के जगह पर 80 लिया, तो e raised to i at is cos 80 plus i sin 80. ओके, ये ऑयलर्स फॉर्मूला है. तो इसका मतलब है Laplace transform of e raised to i at will be equal to Laplace transform of cos at plus i sin at. करेक्ट. ओके, यहाँ पर प्लस है एंड i is a constant which is multiplied, तो हम linearity property यूज करेंगे. तो according to linearity property this will be Laplace transform of cos at plus i into Laplace transform of sin at. करेक्ट. सो हमें यहाँ पर मिलता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to i at इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at प्लस i टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at. इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हैं. नाउ लेट्स लुक एट दिस लेफ्ट हैंड साइड. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to i at, दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. करेक्ट. We have just seen the formula for Laplace transform of e raised to at.
इट इज 1 अपॉन एस माइनस ए। तो अगर लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू आई ए टी है तो इट इज 1 अपॉन एस माइनस आई ए या फिर ए आई। ओके, सो वी हैव यूज्ड द प्रीवियसली फाउंड फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इफ यू रिमेंबर डिनोमिनेटर में हम कभी आई नहीं रखते, इजंट इट? सो वी हैव टू परफॉर्म दिस डिवीजन। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं? वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट कैसे मिलता है? आई के जगह पे माइनस आई डाल के। तो ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है s प्लस ए आई। तो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय s प्लस ए आई। तो न्यूमरेटर में मिलेगा 1 इंटू एस प्लस ए आई, दैट इज s प्लस ए आई, और डिनोमिनेटर में मिलेगा s माइनस ए आई इंटू एस प्लस ए आई। ओके, अब ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। करेक्ट, ये फॉर्मूला भी हमने सेमेस्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखा था। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर a के जगह पर s है और b के जगह पर a है। तो दिस विल बिकम s प्लस ए आई अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब इसको डिवाइड सेपरेटली करेंगे तो we get s upon s square plus a square plus I into a upon s square plus a square. Okay, तो ये जो है if you see the final answer, इसमें ये जो s upon s square plus a square is the real part, और ये जो I के साथ multiplied है a upon s square plus a square, this is the imaginary part. Okay, so this is the Laplace transform of e raised to I a t. But Laplace transform of e raised to iat is same as Laplace transform of cos at plus I times Laplace transform of sin at. इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो this is equal to s upon s square plus a square plus I into a upon s square plus a square. Okay. Now in this statement, अगर हमने दोनों तरफ के रियल पार्ट्स को कंपेयर किया तो द रियल पार्ट विल बी इक्वल। दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन। इक्वल है मतलब दोनों के रियल पार्ट इक्वल है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। तो दोनों के रियल पार्ट मतलब द पार्ट नॉट कंटेनिंग आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों के रियल पार्ट को अगर हमने कंपेयर किया तो वी गेट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों तरफ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो वी गेट लेफ्ट इमेजिनरी पार्ट यानी द पार्ट विच इज मल्टीप्लाइड विथ आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें मिलता है इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमें दो फॉर्मूला मिल गए, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी एंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। तो इस मेथड से हमें दोनों फॉर्मूले एट इन वन एक ही इसमें मिल जाता है। इफ यू यूज डेफिनेशन मेथड तो साइन ए टी के लिए आपको एक बार सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है, कॉस ए टी के लिए आपको एक बार सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके, तो अब ये दो फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। Laplace transform of cos at is s upon s square plus a square. Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. Okay, तो अब तक हमने कितने स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे? e raised to at, इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है 1 upon s minus a. e raised to minus at, इसका भी लप्लास ट्रांसफॉर्म पता है 1 upon s plus a. cos at, इसका भी हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म पता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी, इसका भी लप्लास ट्रांसफॉर्म पता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब तक हमें चार फंक्शंस के लप्लास ट्रांसफॉर्म पता है। एंड वन मोर फंक्शन आई टोल्ड यू जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इट इज 1 बाय s। ओके, तो वो भी अपना स्टैंडर्ड फंक्शन में कंसीडर होगा। सो टोटल एज ऑफ नाउ हमें
5 स्टैंडर्ड फंक्शन के लैप्लस ट्रांसफॉर्म याद है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन. तो वी नीड टू नो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी. ओके, यहाँ पर डेफिनेशन मेथड हम नहीं यूज करेंगे. अब तो हमें पता है वी कैन यूज अ सिंपलर मेथड. तो वी आर गोइंग टू यूज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन टू गेट द लैप्लस ट्रांसफॉर्म. So I will show you for one, I will show you for sin hyperbolic 80. सेम प्रोसीजर से आप cos hyperbolic 80 का भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो अभी sin hyperbolic 80 सेमेस्टर 1 में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया था, तब वी गॉट इंट्रोड्यूस टू हाइपरबोलिक फंक्शन. तब हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि हाइपरबोलिक फंक्शंस कभी भी आता है, ऑलवेज यूज द डेफिनेशन. ओके, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा का डेफिनेशन था e रेज टू थीटा माइनस e रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2. सो हियर थीटा द एंगल इज 80. So sin hyperbolic 80 is e raised to 80 minus e raised to minus 80 upon 2. So Laplace transform of sin hyperbolic 80 will be Laplace transform of e raised to 80 minus e raised to minus 80 upon 2. Okay, इस पे हम linearity property यूज करेंगे. ये जो अपॉन 2 है, दिस इज एक्चुअली हाफ कांस्टेंट, तो ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं. So we get 1 by 2 Laplace transform of e raised to 80 minus Laplace transform of e raised to minus 80. Now we know Laplace transform of e raised to 80. We also know Laplace transform of e raised to minus 80. तो चलो substitute करते हैं. So we get half Laplace transform of e raised to 80 is 1 upon s minus a minus Laplace transform of e raised to minus 80 is 1 upon s plus a. तो चलो ये सब्सटीट्यूट तो कर दिया, अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई नजर आता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो दिस गिव्स अस हाफ 1 into s plus a is s plus a minus 1 into s minus a will be minus s plus a upon s minus a into s plus a. तो यहाँ पर अगर आपने न्यूमरेटर में देखा, s और माइनस s कैंसिल होता है, and a plus a will give you 2a. Denominator में we'll have to use a plus b, a minus b का formula, which is a square minus b square. Okay, so this gives us half 2a upon s square minus a square. अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, and we get a upon s square minus a square. So this is the Laplace transform of sin hyperbolic 80. So we get Laplace transform of sin hyperbolic 80 is a upon s square minus a square. अभी अगर आपने नोट किया है, इससे पहले हमने Laplace transform of sin 80 फाइंड आउट किया था. That was a upon s square plus a square. देखो सिमिलर टाइप है, तो साइन में डिनोमिनेटर में प्लस था, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में माइनस है. ओके, इसी सेम प्रोसीजर से हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 80 इज इक्वल टू s upon s square plus a square. This is something which you can try. Okay, so right now how many functions का Laplace transform we know? We know Laplace transform of 1. We know Laplace transform of e raised to 80, Laplace transform of e raised to minus 80, Laplace transform of sin 80, Laplace transform of cos 80, sin hyperbolic 80, cos hyperbolic 80. Anupam, 7. 6 is correct because I think 7, no dear, 1 minute. Laplace transform of 1, e raised to 80, e raised to minus 80, sin 80, cos 80, sin hyperbolic 80, cos hyperbolic 80. मेरे काउंटिंग में 7 आ रहा है. हाँ, ओके, तो अब हमें ये 7 फंक्शंस याद रखने हैं. ओके, तो ये अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी, यूज करते प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ओके, नाउ देयर इज ओनली वन मोर फंक्शन. कौन सा? अपना द फेमस एल्जेब्रिक फंक्शन. ओके, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? सिर्फ अभी अभी हमारा ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन रह गया है.
सो लेट अस सी दिस। तो इसको तो हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म के लिए डेफिनेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, तो वी राइट डाउन द डेफिनेशन। Laplace transform of f of t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t। f of t के जगह पर t raised to n सब्सटीट्यूट करते, तो वी गेट इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st into t raised to n dt। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? आर वी गोइंग टू यूज यूवी रूल? अब यहाँ पर n तो अननोन है ना, तो फिर यूवी रूल कहाँ तक यूज करेंगे? So we are going to use another method for evaluating this integral, and that is gamma function। ये जो gamma function है, ये हमने semester 2 में end में देखा था। I had sent you the videos of this। I'm not sure हमें कितना याद है, but anyway we will quickly recall this। Okay, तो gamma function है इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus x raised to n। ओ सॉरी, दिस इज dx। हाँ, ये कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम हुआ है, मैंने कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ x कर दिया बट यहाँ x नहीं किया, सो सॉरी, दिस इज x। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू n dx। दिस इंटीग्रल इज गैमा ऑफ n प्लस वन। ओके, ऐसा इंटीग्रल आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ n प्लस वन। तो अगर आप चेक करें, दिस टू इंटीग्रल्स आर सिमिलर, लिमिट सेम है। ओके, हियर t है, t रेज टू सम पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, बट डिफरेंस क्या है? वी नीड जस्ट e रेज टू माइनस द वेरिएबल, बट वी हैव यहाँ पर e रेज टू माइनस s इंटू टी, तो ये s इंटू टी नहीं चलेगा। अगर s इंटू टी रहेगा तो हम इसे गैमा फंक्शन लिख नहीं पाएंगे। ओके, सो टू मेक दिस एज अ वेरिएबल विल यूज सब्सटीट्यूशन। तो विल पुट s इंटू टी इक्वल टू x ओवर हियर, मतलब we are putting t equal to x upon s, तो अपना dt बनेगा dx upon s। ओके, what about the limit? t का लिमिट है from 0 to infinity। ओके, तो x का लिमिट क्या होगा? when t is 0 in the substitution, when you put t equal to 0, x will be s into 0, that is 0, and when you put t equal to infinity in the substitution, x will be s into infinity, that is infinity। तो हमारा x का लिमिट भी 0 to infinity आता है। Let's substitute all this in this integral। So we get integral 0 to infinity e raised to minus x, t के जगह पे आएगा x upon s raised to n, and dt is dx upon s। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर s जो है, since the integration is with respect to x, s is a constant with respect to this integral, it can be taken out। तो यहाँ पर s जो है, it is inside this bracket, so s is in the denominator with power n। One more s over here, so we have s raised to n plus 1 in the denominator। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो we get 1 upon s raised to n plus 1 integral 0 to infinity e raised to minus x raised to n dx। okay, सो दिस इज आर इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को हम गैमा फंक्शन लिख सकते हैं। सो दिस इज गैमा ऑफ n प्लस वन अपॉन s रेज टू n प्लस वन। ओके, सो दिस इज द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n। सो वी गेट दिस वन मोर फॉर्मूला नाउ। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1। ओके, तो ये एक और फॉर्मूला हमें याद रखना है। सो दैट इज ऑल, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर ये गैमा फंक्शन देख के थोड़ा टेंशन आ गया होगा कि भाई ये गैमा फंक्शन का करना क्या है। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस गैमा फंक्शन। आई विल बी टेलिंग यू ओनली दोज टाइप ऑफ गैमा फंक्शन जो हमें इस सेमेस्टर के प्रॉब्लम्स में आएंगे। ओके, पिछले सेमेक्स 2 में मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने इन जनरल सब डिस्कस किया था कि गैमा फंक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। इफ यू डू नॉट हैव इट, आई विल रीसेंड इट। ओके, बट इस सेमेस्टर में हमें सिर्फ दो टाइप के गैमा फंक्शन के वैल्यूज फाइंड आउट करने। एक टाइप ऐसे जहां पे आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, विच आई कैन से अ नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 है, इस तरह का आपको एक फंक्शन आ सकता है। ओके, या फिर आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अ गैमा फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 है। बस ये दो तरह के
गामा फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस सेमेस्टर के प्रॉब्लम्स के लिए. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज टू. तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 1 है, दैट इज वी आर हैविंग अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट विल बी this number minus 1 factorial, like gamma of 7 will be 7 minus 1 factorial, that is equal to 6 factorial. Okay, I'm just telling you the procedure. इसके बैकग्राउंड का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेशन फिलहाल कुछ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका प्रोसीजर बता रही हूँ. ओके, तो gamma of 12, अगेन दिस इज अ नेचुरल नंबर, यानी डिनोमिनेटर अगर 1 है तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 12 minus 1 factorial, that is 11 factorial. गैमा ऑफ 5 क्या होगा? अगेन ये नेचुरल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका वैल्यू होगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल. ओके, नेक्स्ट गैमा ऑफ 1, ये तो अपना नेचुरल नंबर 1 है ही. दिस अगर आप इस प्रोसीजर के हिसाब से जाएं तो इट इज 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल, एंड वी नो 0 फैक्टोरियल इज 1. Otherwise also gamma of 1 is a standard basic formula in gamma function. अब इन फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? ये तो आप कैलकुलेटर में फीड करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू गामा वैल्यूज वेयर द डिनोमिनेटर इज 2. तो अगर डिनोमिनेटर 2 है तो इसको कैसे इवेलुएट करना है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, गामा ऑफ, से यू हैव गॉट 5/2. अगर डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर. ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑड नंबर है 5. तो 5 के बाद नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर कौन सा है? 3. ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट विथ 3/2. 3 के बाद नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर क्या है? 1. सो दिस विल बी 3/2 into 1/2. 1 is the smallest odd number. Stop here and multiply by root pi. This is the procedure. Okay, gamma of 5/2 यानी ये जो 5 के बाद नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर कौन सा था? 3. तो वी रोट 3/2 into 3 के बाद नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर कौन सा है? 1. 1/2. 1 के बाद 1 is the smallest positive odd number. So we stop here and multiply by root pi. अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 3 into 1 into root pi, that is 3 root pi upon 2 into 2, that is 4. So answer will be 3 root pi upon 4. Okay, यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखाया है, that multiplication can be done easily. यहाँ पर सिर्फ ये प्रोसीजर पे ध्यान रखिए. ओके, नेक्स्ट लेट अस सी गामा ऑफ 11/2 क्या आएगा? 11 के बाद नेक्स्ट छोटा नंबर क्या आएगा? 9. तो 9/2 इंटू इसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर 7/2 इंटू 7 के बाद नेक्स्ट छोटा नंबर 5/2 इंटू इस 5 के बाद नेक्स्ट छोटा नंबर 3/2 इंटू 3 के बाद नेक्स्ट छोटा नंबर 1/2. ये सबसे छोटे नंबर पे पहुंच गए. द मोमेंट यू रीच दिस 1/2, स्टॉप एंड मल्टीप्लाई बाय रूट पाई. ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर. फिर ये मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन ये हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स में करेंगे. नेक्स्ट लेट अस सी गामा ऑफ 3/2. गामा ऑफ 3/2, 3 के बाद नेक्स्ट छोटा नंबर क्या है? 1. तो वी गेट 1/2. 1/2 में स्टॉप करना है इनटू रूट पाई. गामा ऑफ हाफ, ये 1 सबसे छोटा नंबर है, तो दिस इज वैल्यू इज रूट पाई. ये जो है ये बेसिक वैल्यू है, वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज इन गामा फंक्शन. ओके, so gamma of half is root pi. So I hope you have understood how to find the gamma values of these two types. Is this okay? Okay, so we have understood how to find. Okay, great, thank you. So we have understood what is the Laplace transform of all the standard functions. ये देखो मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दिया है. Laplace transform of 1 is 1 by s. Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Laplace transform of e raised to minus at is 1 upon s plus a. Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. Laplace transform of cos at is s upon s square plus a square. Laplace transform of sin hyperbolic at is a upon s square minus a square. Laplace transform of cos hyperbolic at is s upon s square. Oh, sorry, this is minus. This has to be minus a square
Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. Okay, so this is our basic formula. अब हमें ये सिर्फ हमें याद रखना है. इसमें भी ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होते, सो मोस्टली यू विल रिक्वायर 1 2 3 4 5 एंड दिस 6. ये ऑफन यूज्ड है, ये ज्यादा यूज होता है. हाइपरबोलिक फंक्शन का कम यूज होता है. ओके, now let us use this formulas here. So okay, 1 minute, shall I make this correction? I think this shouldn't. 1 minute, just give me 1 minute. I will just need 5 more minutes. I'll just take 5 more minutes of your time. Okay, एंड फिर अपना हो गया है. सिर्फ ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखे हैं, इसका हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल्स, then we can stop. Okay, I will just take 5 more minutes of your time. Okay, I have made the correction. ओके, ये जो था यहाँ पर एक साइन का एरर था, तो ये भी करेक्शन कर दिया है. अदरवाइज गलत फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठना चाहिए. करेक्ट ना? ओके, तो ये अपना लिस्ट है, तो इसको फटाफट कैसे यूज करना है देख लेते हैं एक बार. तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू 2t क्या होगा? टाइप मत करना, मैथमेटिकल इक्वेशन आप बोल सकते हैं. आई एम गिविंग यू द आंसर. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. तो t के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो यानी a के जगह पे 2 है, तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन s माइनस 2. ओके, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 3t क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. a के जगह पर 3 है, तो आंसर रहेगा 1 अपॉन s प्लस 3. लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t क्या होगा? इफ यू कंपेयर विद दिस, a के जगह पे 4 है, so this will be 4 upon s square plus 4 square, that is 4 upon s square plus 16. Laplace transform of cos 3t क्या होगा? We compare with this, a के जगह पे 3 है, so we have answer as s upon s square plus 3 square, that is s upon s square plus 9. Laplace transform of sin hyperbolic 2t क्या होगा? इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. a के जगह पे 2 है, तो इट विल बी 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4. लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक t क्या होगा? इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे. a के जगह पर 1 है, t के साथ 1 मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, सो इट इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, विच इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1. लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी गैमा ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन एस रेज टू 2 प्लस 1. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन इज गैमा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1. सो दिस विल बी गैमा ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन एस रेज टू 2 प्लस 1, विच इज गैमा ऑफ 3 अपॉन एस क्यूब. अब ये गैमा ऑफ 3 को सिंप्लीफाई करना है, तो ये कौन से टाइप में आता है? डिनोमिनेटर 1 वाले टाइप में आता है. So this is 3 minus 1, that is 2 factorial upon s cube. 2 factorial is 2 into 1, that is 2 upon s cube. तो इस तरह से हम Laplace transform of t square find out कर सकते हैं. Okay, so these are the basic functions. One more function, Laplace transform of t raised to 3 by 2. तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है. It will be gamma of 3 by 2 plus 1 upon s raised to 3 by 2 plus 1. ये 3 by 2 plus 1 है 5 by 2, तो वी गेट गैमा ऑफ 5 by 2 अपॉन s रेज टू 5 by 2. अब गैमा ऑफ 5 by 2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डिनोमिनेटर 2 वाला टाइप है, तो ये न्यूमरेटर का नेक्स्ट छोटा ऑड नंबर से स्टार्ट करना है,
तो मैंने ये 1/s⁵ को साइड में रखा है। इसका वैल्यू आएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 × 1 × √π इज 3 √π अपॉन 2 2 4 इंटू s⁵ ओके। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, बट आई एम श्योर ये कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगा है, करेक्ट। 2 3 प्रॉब्लम इसी तरह का सॉल्व करोगे तो एकदम आराम से आपके हाथ में बैठ जाएगा। ओके, सो दीज आर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये मैं इसका पीडीएफ आपके क्लासरूम में अपलोड कर रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो आप ट्राई करोगे। इसका मैंने आंसर नहीं दिया है, ऑब्वियस रीजन, इसका एक स्टेप में आंसर आ जाता है, तो फिर अगर मैं यहाँ पर आंसर दे दूं तो आप क्या सॉल्व करोगे, करेक्ट नो। बट नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बिगिन विद द आंसर्स ऑफ दिस। तो हम इसका आंसर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट लेक्चर दैट इज कल का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम इसके आंसर्स चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी प्रॉब्लम्स। आज तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस याद किए हैं, तो उस पे बेस्ड, स्टैंडर्ड फंक्शंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज द टाइप 2 प्रॉब्लम्स, वो देखेंगे। और एक और प्रॉपर्टी देखेंगे विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, प्लीज अटेम्प्ट क्विज 3। नाउ यहाँ पर मैंने बिफोर लीविंग लिखा है, दिस इज टू बी कंसिडर्ड। क्विज 3 जो है इट विल बी ओपन फॉर यू टुडे एंटायर डे। सम स्टूडेंट्स का नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, तो यू नीड सम टाइम फॉर अ ब्रेक। ओके, सो ऑलरेडी मैंने आपका 7 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया है, तो ये क्विज 3 आज शाम तक रहेगा। तो आप ये क्विज कभी भी अटेम्प्ट करना, लेकिन आज ही अटेम्प्ट करना। ओके, ना यहाँ पर कॉपी मत करना, ठीक है। कि एक बंदे ने एक सारे क्विज अटेम्प्ट किए और बाकी लोगों ने, तूने कौन सा सेकंड टिक किया सेकंड, तूने ये वाला क्वेश्चन में फर्स्ट टिक किया, ऐसे नहीं। दिस क्विज आई एम गिविंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। आप खुद से ट्राई करो। ओके, ओ माय गॉड, पीपल हैव ऑलरेडी सबमिटेड। सबमिटेड व्हाट? ओके, तो ये आराम से क्विज अटेम्प्ट करना। ये क्विज इसके लिए है कि आपको आज का लेक्चर का कंटेंट कितना समझ में आया, ओके, ये चेक करने के लिए है। तो अगर इसमें से आपको कुछ क्विज नहीं समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वहां पर आपको डाउट है, तो वो डाउट पूछना, तो वो आपका डाउट क्लैरिफाई होगा। ओके, ये फॉर्म भी आज के पूरे दिन रहेगा। ये फॉर्म, दिस डाउट्स एंड क्वेरीज वाला फॉर्म कल तक रहेगा, बिफोर कल मॉर्निंग तक रहेगा, तो आप इसको भी फिल करना। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू डियर्स। एनीथिंग यू वांट टू आस्क एज ऑफ नाउ? Okay. So nothing to ask, then that is all. Thank you so much. Bye dears. Have a nice day.